everyone, I am Soumya and welcome to Think Basic folks. So while preparing for UPSC, the one thing you must know is that UPSC Civil Services exam is not just a test of knowledge, but rather it's a test of how well we can organize, retain and revise that knowledge. Therefore, at the core of this UPSC preparation lies the very one single powerful tool, which is your own notes. But mind it, not just any random notes, rather the smart, structured and revision friendly notes. But the problem is कि हमारे पास ना बताने वाला या चेक करने वाला कोई नहीं है that are we making the right kind of notes? Are they helping us to revise faster? And are they tailored to the demands of prelims, mains and even the interview? Because see what happens is while preparing जब भी हम NCERTs या current affairs या लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम जैसी बुक्स पढ़ते हैं ना, each one of us must have felt कि यार एक बुक को पढ़ने में ना काफी टाइम लग रहा है, तो उसका रिवीजन कम टाइम में कैसे पॉसिबल है. ऑल्सो जब हम अच्छे से पढ़ रहे होते हैं बुक को, बट लेकिन द वेरी नेक्स्ट डे हम भूल जाते हैं कि हमने क्या पढ़ा था, जिस वजह से हम डिमोटिवेट फील करने लगते हैं. एंड एज अ सोल्यूशन टू दिस हम टॉपर्स के इंटरव्यूज देखते हैं जहां हम सुनते हैं कि हमको क्रिस्प एंड प्रिसाइज नोट्स बनाने चाहिए. फॉलोइंग दिस हम पूरे मन से प्लान तो करते हैं कि हाँ चलो हम अच्छे से नोट्स बनाएंगे, एंड जैसे ही हम स्टार्ट करते हैं ना नोट्स बनाना, हमें और भी ज्यादा डबल एंड ट्रिपल टाइम लग रहा होता है बुक को कवर करने में, एंड साइमल्टेनियसली नोट्स बनाना भी काफी टीडियस प्रोसेस फील होता है. इनफैक्ट हम नोट्स बनाते बनाते भूल ही जाते हैं कि हमें शॉर्ट नोट्स बनाने थे, लेकिन हम अनइंटेंशनली अननोइंगली एक ग्रंथ या एक बुक ही लिखना स्टार्ट कर देते हैं. देन एट लास्ट होता क्या है कि हम बस रीडिंग पर ही रिलाई करते हैं, सोचते हैं कि इसी एक बुक को कई बार हम रिवाइज कर लेंगे, या फिर हम सीधे टॉपर्स के शॉर्ट नोट्स ले आते हैं ये सोचकर कि उससे हमारा काम बन जाएगा. एंड माइंडेड ये गलती ना 80 to 90% कैंडिडेट्स कर रहे हैं, जिससे उनका प्रेशियस टाइम वेस्ट हो रहा है, लीडिंग ओनली टू स्ट्रेस एंड एंजाइटी एट द लास्ट मोमेंट. सो आज मैं आपसे विद माई एक्सपीरियंस ऑफ 4 मेंस विल टेल यू एवरीथिंग अबाउट नोट्स इन एवरी डिटेल कि नोट्स हमें बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए, बनाने हैं तो कब बनाने चाहिए, कैसे बनाने चाहिए, कितने नोट्स बनाने चाहिए, और टॉपर्स के जो नोट्स हैं उनका हमें क्या करना है. In short, we will discuss how to build a system where your own notes becomes your second brain and not just any random scattered pages. So if you are overwhelmed with books, PDFs and contents and confused about notes, this video will help you cut through the clutter and build clarity. Because in UPSC, reading is essential, but reading smartly is what sets you apart. Okay? But yes, before we go ahead, we all know that prelims is over and now is the time for mains preparation. यही time हमारे लिए golden window है to start and master answer writing. Because let me tell you, mains exam ना अब सिर्फ knowledge का game नहीं रह गया है, but rather it has become the pure game about how you express your knowledge under pressure in just 250 words within those 7 minutes in the exam hall. See, you will also relate to this कि बहुत बार ना हमें क्वेश्चन का आंसर पता होता है, कंटेंट हमें अच्छे से आता है, बट स्टिल हम उसे सही तरीके से कम वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर पाते. एंड दिस इज एग्जैक्टली वेयर वी नीड द डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, फॉर विच आई विल सजेस्ट यू टेक्स्ट बुक पास अली प्रोग्राम, जहां डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के साथ साथ डिमांड ऑफ द क्वेश्चन को भी एड्रेस किया जाता है टू ब्रिंग दैट वेरी एक्स फैक्टर इन योर प्रिपरेशन. Not only this, you will also get here last 6 years mains solve previous year questions apart from the 20 mains test just to analyze your performance. Here also you will be provided with the daily newspaper editorial analysis as well, which is actually considered the backbone for your entire mains preparation. So इस program को अभी join करो using my code THINK22 to get straight 10% discount. Link और code description में mentioned है. So join the program and feel the difference yourself. Okay, so now अब इस वीडियो को बहुत ध्यान से समझना, as all your doubts regarding notes will be answered here in this one video itself. ठीक है, तो देखो, मेकिंग योर ओन नोट्स इज एब्सोल्युटली एसेंशियल बिकॉज आप हर सब्जेक्ट के मटेरियल को लास्ट 1 to 2 months बिफोर एग्जाम में पेज टू पेज रिवाइज नहीं कर सकते, because you have to manage too many things together, from revision to current affairs to full and test, optional, CSAT and whatnot. ऑल्सो खुद के नोट्स के थ्रू ना हम सीधे प्रीलिम्स में 20 to 25 मार्क्स एक्स्ट्रा अचीव कर सकते हैं, एंड मेंस में भी पर क्वेश्चन हम 1 to 2 मार्क्स का डिफरेंस इजिली क्रिएट कर सकते हैं, लीडिंग टू अ कंप्लीट डिफरेंस ऑफ 20 to 40 मार्क्स पर मेंस पेपर, बिकॉज नोट मेकिंग इनडायरेक्टली हेल्प्स अस विद आंसर राइटिंग टू.
So in short, our own notes will definitely help us revise multiple times, leading to better retention, जिस वजह से हमें एग्जाम में कंफ्यूजन भी नहीं होगा, स्पेशली इन प्रीलिम्स जहां हम क्वेश्चन में ना 2 या 3 ऑप्शंस में कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, इससे चांसेस भी काफी लिमिट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो, रिवर्स पर हर साल एक क्वेश्चन आता ही है प्री में डायरेक्टली, मेंस में वाटर स्ट्रेस या वाटर स्केसिटी से लिंक्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने सारी रिवर्स को बस इन 2 पेजेस में कंसोलिडेट कर लिया ताकि मैं इन्हें इजीली बस 2 मिनट में सारी रिवर्स को रिवाइज कर पाऊं। एंड दिस वे आई मेड श्योर कि मेरे 4 to 6 मार्क्स मिनिमम एग्जाम में पक्के हो जाएं यूजिंग जस्ट दिस वन शीट ओनली। एंड सेम वे आई डिड फॉर आर्टिकल्स एंड शेड्यूल्स इन पॉलिटी एंड मेनी अदर टॉपिक्स एज वेल। इस तरीके से आप शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, ओके, सो नाउ आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द क्लैरिटी दैट व्हाई वी मस्ट मेक नोट्स। तो नाउ लेट्स डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग नोट्स कि आखिर नोट्स हमें बनाने कब है। बिकॉज ऑनेस्टली मोर देन 95% एस्पिरेंट थिंक्स कि हम फर्स्ट रीडिंग में पढ़ते टाइम ही साथ साथ नोट्स बनाते चलेंगे। अगर आपने भी कभी भी ऐसा सोचा है तो please comment below that yes, I have thought to make notes while reading so that you yourself can see that how many of us think alike in such situations. या फिर there are many other people जो सोचते हैं कि हम पहले पूरी बुक को कवर कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम नोट्स बनाएंगे। Comment below that whether you belong to the first category or the second one, because I want to know that how many of you have ever seriously thought to make notes. ठीक है, तो देखो यहाँ पे बहुत क्लैरिटी से एक बात समझो कि अगर आप देखकर नोट्स बनाने का सोच रहे हो ना पढ़ते टाइम, तो उसका कोई रेलेवेंस ही नहीं रह जाएगा। आज 2-3 दिन बाद तो छोड़ो, द वेरी नेक्स्ट डे ही आपको कुछ रिटेन ही नहीं रहेगा। आज हमने ना नोट मेकिंग के एसेंस को समझा ही नहीं है, हमने बस पढ़ते टाइम उसको बनाना शुरू कर दिया, तो फिर नोट्स बनाने का आखिर फायदा हुआ ही क्या। और दूसरा, अगर आप ये सोच रहे हो कि हम पूरी बुक को पहले पढ़ लेंगे, अच्छे से कवर कर लेंगे, उसके बाद हम नोट्स बनाएंगे, तो लेट मी टेल यू स्ट्रेट कि जब आपकी बुक फिनिश हो जाएगी ना पढ़ने के बाद, तो आपको लगेगा कि यार नोट्स बनाने में ना बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। एक काम करते हैं, अगले सब्जेक्ट या अगली बुक पे प्रोसीड कर जाते हैं, नोट्स हम बाद में रिवीजन के टाइम पे देख लेंगे, तब बना लेंगे। तो इन शॉर्ट दोनों ही तरीके देखो गलत है। आपको जो बिल्कुल बेसिक एंड सिंपल अप्रोच जो अपनानी है इज दिस कि हर चैप्टर को या फिर हर टॉपिक को पढ़ने के बाद बिना देखे जो भी हेडिंग्स या सब हेडिंग्स आपने पढ़ते टाइम गो थ्रू करी है ना, उसके एसेंस को आपको लिखते चलना है। ठीक है, ओके, तो अब हमें यूपीएससी एग्जाम के लिए शॉर्ट, क्रिस्प एंड प्रिसाइज नोट्स कैसे बनाने हैं, इसे यहाँ स्टेप वाइज ध्यान से समझना। The first thing to keep in mind is we have to make integrated notes for pre and mains both. हमें डबल मेहनत करने की जरूरत नहीं है कि प्री के अलग नोट्स बनेंगे एंड मेंस के अलग, बिकॉज इफ यू विल एनालाइज यू विल नोटिस कि प्री में भी ना सिंस लास्ट 4-5 years मेंस टाइप एनालिटिकल क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव तरीके से पूछे जाते हैं। देयरफॉर पढ़ते टाइम ही हमें हर टॉपिक या चैप्टर को इंक्लूसिव वे में पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इकोनॉमी में सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी पढ़ रहे हैं या पॉलिटी में सेंटर स्टेट रिलेशंस पढ़ रहे हैं, तो हमें सबसे पहले इन टॉपिक्स को रिस्पेक्टिव सोर्सेज से कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ना है। देन इमीडिएटली पढ़ने के बाद मन में ही बिना देखे हमें रिवाइज करना है एंड देन नोट्स बनाने हैं, एज इससे हमारी एक्यूरेसी एंड रिटेंशन पावर दोनों ही 100% इंप्रूव होगी। अच्छा, अब मन में ही रिवाइज करने के बाद ना नोट्स बनाने के लिए वी जस्ट हैव टू फॉलो 2 थिंग्स। द फर्स्ट इज जो मैंने आपको GS1 एंड GS2 वाली स्ट्रैटेजी वीडियो में भी पूरा बताया था, दैट इन योर इंटीग्रेटेड प्री प्लस मेंस नोट्स यू मस्ट आंसर 6 क्वेश्चन कीवर्ड्स अबाउट अ टॉपिक, दैट इज व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, हाउ एंड whom। मतलब कि हर चैप्टर में जो भी हेडिंग्स, सब हेडिंग्स या बैक एंड क्वेश्चंस एंड जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम बार बार भूल रहे हैं, इन सब पर बस हमें शॉर्ट में इन 6 क्वेश्चन कीवर्ड्स का यूज करते हुए अपने 6 to 8 पॉइंट्स नोट्स में लिखने हैं, इंक्लूडिंग द डेफिनेशंस, इलस्ट्रेशंस एंड एग्जाम्पल्स। जैसे कि यहां मैंने पूरे देखो सेंटर स्टेट रिलेशंस वाले टॉपिक को लक्ष्मीकांत एंड करंट अफेयर्स से बस एक ही पेज में पूरा समराइज कर दिया है। इसमें लेजिस्लेटिव रिलेशंस भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एंड यहाँ पे देखो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस के भी सारे पॉइंट्स मेंशन्ड है। इसी सेम तरीके से आप हर टॉपिक को कंसोलिडेट कर सकते हो सो दैट एग्जाम से जस्ट एक दिन पहले जो लास्ट डे होता है उसमें हम बस 5 to 6 आवर्स में अपना पूरा एक सब्जेक्ट कंप्लीटली रिवाइज कर सके। एंड यस, इसी के साथ द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट जस्ट मेक श्योर कि जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो ना, उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड अदर प्रैक्टिस क्वेश्चंस विद करंट अफेयर्स में जो भी एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमको मिलती है, लाइक एनी डेटा और अ फैक्ट, एनी रिपोर्ट और सर्वे,
some committees and judgments like रामनाथ कमिटी on one nation one election, जो सेंटर स्टेट वाले टॉपिक में आप मेंशन कर सकते हो, या फिर कोई इंपॉर्टेंट डिस्कवरी हुई हो या कोई रीसेंट करंट इवेंट हुआ हो, इन सब तरीके की एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को हमें अपने 6 to 8 पॉइंट्स के साथ एड ऑन करते जाना है टाइम टू टाइम। एज लास्ट में ना देखो, एक बात समझ लो कि आप सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एक बार भी रिवाइज नहीं कर पाओगे। आई एम टेलिंग यू दिस, इतना टाइम ही नहीं होगा आपके पास। सो बी वाइज एनफ कि इस एरिया को भी हम साथ साथ केटर करते चले। सी द पर्पस इज कि एक ही जगह हमारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड करंट अफेयर्स सब कंसोलिडेट होता चला जाए। ठीक, अब बात करें कि हाउ नोट्स विल हेल्प यू इन योर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। टू सी हियर, जो भी हमारे नोट्स होंगे ना, वो पैराग्राफ्स या सेंटेंसेस फॉर्म में नहीं होंगे एज इट टेक्स ट्रिमेंडस टाइम एंड स्पेस। रादर हमारे नोट्स जो है पॉइंट फॉर्मेट में होंगे, इंक्लूडिंग द फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स, मैप्स, टैबुलर फॉर्म्स, शॉर्ट फॉर्म्स एंड निमोनिक्स। बिकॉज ऐसा करने से हमारी आंसर राइटिंग में प्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस बनती जाएगी एंड दैट टू लिमिटेड वर्ड्स में हमारे आंसर लिखने की भी प्रैक्टिस बनती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहां देखो, हिस्ट्री में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वाला जो पूरा पोर्शन है, वहां पर कई बार हमें कंफ्यूजन हो जाता है डिस्पाइट रीडिंग इट न्यूमरस टाइम्स। तो मैंने इस पूरे पोर्शन को सिंपली टैबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब कोई कंफ्यूजन या गलती होने का चांस ही नहीं है। एंड सेम आई डिड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एज वेल, बिकॉज यहाँ पे भी बहुत कंफ्यूजन रहता है कि कौन किसे अपॉइंट करता है, कौन किसे रिमूव करता है, अपनी रिपोर्ट कौन किसे सबमिट करता है। इन तीनों ही एरिया से ना क्वेश्चंस इवन मेंस तक में पूछे जाते हैं एंड ये क्वेश्चंस इजी होते हुए भी हमारे कई बार गलत हो जाते हैं। तो अपने मार्क्स पक्के करने के लिए आई मेंटेन दिस इन टैबुलर फॉर्म। आप भी ऐसे नोट्स बना सकते हो। एंड मिसलेनियस टॉपिक्स जो होते हैं लाइक इंपॉर्टेंट जजमेंट्स, कोई कमिटीज हैं या इंपॉर्टेंट स्कीम्स हो गई, इन एरियाज को आप सेपरेट A4 साइज शीट्स पे प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, वन मोर थिंग, आई चूज टू मेक नोट्स इन A4 साइज शीट्स बिकॉज मुझे लगता है कि मेंस के लिए हमें लिखना तो है ही, तो अल्टीमेटली मेरी प्रैक्टिस बनी रहेगी। But there are definitely many aspirants who prefer making notes digitally, and if you also prefer to make digital notes, then you can use Evernote for that. ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया होगा आपको अभी तक कि नोट्स बनाने कैसे हैं। पर कितने नोट्स हमें बनाने हैं वो भी एक बार देख लेते हैं। एज हमें ग्रंथ नहीं लिखना है नोट्स का, तो देखो हमें इंटीग्रेटेड नोट्स बनाने हैं सब्जेक्ट वाइज एंड कोशिश करना है कि हर सब्जेक्ट के नोट्स हम मैक्सिमम 40 to 50 पेजेस में ही रखें फॉर बोथ प्री एंड मेंस इंक्लूडेड। एज तभी हम इन्हें प्री के एक दिन पहले एंड मेंस एग्जाम में 2 पेपर्स के बीच में जो 3 घंटे का गैप होता है ना, उसमें इजिली रिवाइज कर सकेंगे। इसी के साथ एक लास्ट डाउट जो हमारे मन में आता है कि टॉपर्स के नोट्स से ही पढ़ ले क्या, अपने नोट्स बनाने नहीं पड़ेंगे? एज दे आर टॉपर्स तो उनके नोट्स तो हमसे बेस्ट ही होंगे। तो लेट मी टेल यू, हर टॉपर के नोट्स ना उनकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस के अकॉर्डिंग होते हैं। Even All India Rank 5 Shrishti Deshmukh ma'am said very correct thing that toppers might know some important concept पहले से जो उन्होंने अपने नोट्स में इंक्लूड ना किया हो, जिस वजह से उन एस्पिरेंट्स का बहुत लॉस हो जाता है जो ब्लाइंडली टॉपर्स के नोट्स को फॉलो कर रहे हैं। Even All India Rank 1 2024 बैच शक्ति दुबे मैम says that last 10 years के सारे टॉपर्स के नोट्स आपको बहुत आराम से मिल जाएंगे, बट उससे एग्जाम निकलेगा नहीं हमारा। Even they used toppers note, but what they did is they continuously made additions to these toppers notes so that वो उनके toppers के नहीं बल्कि उनके खुद के notes बन जाए। So in a nutshell, हमारे खुद के efforts ही काम आएंगे लास्ट में। Hence, be wise and make your own notes as it will create a lot of difference in your selection, whether in pre or in mains or in interview. ठीक है? सो आई होप अब आपको बहुत क्लियरली समझ में आ गया होगा कि हमें नोट्स क्यों बनाने चाहिए, कब बनाने चाहिए, कैसे बनाने चाहिए और कितने बनाने चाहिए। ठीक है, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स डू कमेंट बिलो। बहुत जल्द मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।